गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी जब लेक्चर देख रहा है उसके अकॉर्डिंग, दिस इज अंकिता अरोरा। बैक विथ व्हाट? बैक विथ अपील्स एंड रिविजन, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हम क्या कवर कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू कवर avoidance of repetitive appeals. We are going to cover the concept that is what? That is avoidance of repetitive appeal. There are two sections involved in avoidance of repetitive appeal, and one is 158A and another is 158AA. One is 158A and another is 158AA. So let us start with avoidance of repetitive appeal. When I talk about avoidance of repetitive appeal, first we will cover section 158A. We are going to cover section 158A. Section 158A, when assessee claims identical question of law. This is an assessee, he claims question of law. ठीक है, ये क्या है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ क्लेम कर रहा है। कौन क्लेम कर रहा है? हमारा एसएससी। assessee claims identical question of law. This question of law is already pending. This is already pending before, already pending before High Court or Supreme Court. Now what? SSC has claimed something, and this claim, this question of law is already pending before High Court or Supreme Court. अभी सिर्फ हमें ये हेडिंग समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ है, एसएससी क्लेम कर रहा है, और ये जो क्लेम है एसएससी का, दिस इज ऑलरेडी पेंडिंग टू द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब बात सुनना। If I talk about this section, that is 158A, if I talk about this section, that is 158A, I can say that it overrides overall Income Tax Act. The provision of this section are notwithstanding anything contained in Income Tax Act. That means it overrides Income Tax Act. It overrides what? Income Tax Act. Assessee claims a question of law. Now see what I am writing यहाँ पे कि हमारा जो SSC है, this assessee claims what? He claims a question of law arising in his case for an assessment year. कुछ क्वेश्चन ऑफ लॉ हमारा एसएससी क्लेम करता है। दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज इन हीज केस, जो उसके केस में क्या है? अराइज होता है। दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज इन हीज केस फॉर एन असेसमेंट ईयर, किसी असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन ऑफ लॉ है, and this question of law is already pending before AO और appellate tribunal. ठीक है, समझना मेरी बात। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बोल रही हूँ, प्रॉपरली समझ नहीं आया होगा। एसएससी ने कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो उसके केस में अराइज होता है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हुआ एसएससी के केस में। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ अभी कहाँ है? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है, मतलब ये अभी किसके सामने है क्वेश्चन ऑफ लॉ? सपोज करो ये पेंडिंग है, कहाँ पे? ये पेंडिंग है या तो एओ के सामने या फिर एपिलेट अथॉरिटी के सामने। अभी ये पेंडिंग है केस। ठीक है, अभी इस केस का क्या नहीं हुआ? असेसमेंट ओवर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये क्वेश्चन ऑफ लॉ जो अराइज हुआ है इन केस ऑफ द एसएससी, दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग आइदर बिफोर एओ और अपीलेट अथॉरिटी, एंड अपीलेट अथॉरिटी कैन बी CIT of appeal or it can be income tax appellate tribunal, और it can be what? It can be income tax appellate tribunal. यहाँ तक तो बात समझ में आई। Now this identical question of law of his case, now this identical question of law
of his case, यही एसएससी का क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी क्या है, पेंडिंग है. This same identical question of law of his case of another assessment year of what, of another assessment year is pending before, this is already pending, this is already pending before High Court or Supreme Court. It's already pending before High Court or Supreme Court. ठीक है, ओके, यहाँ तक बातें समझ में आई. नाउ व्हाट एसएससी डज, अब एसएससी क्या करता है, दिस एसएससी furnish, he may furnish to AO or appellate authority. Now this assessee may furnish, ये क्या कर सकता है, he may furnish to whom, he may furnish to AO or appellate authority, क्या फर्निश कर सकता है कि जो भी फाइनल डिसीजन होगा, टू अप्लाई द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस, टू अप्लाई फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस, जो इसका केस चल रहा है इसमें जो भी फाइनल डिसीजन आएगा वो क्या करना, इसका फाइनल डिसीजन इस केस पे एप्लीकेबल कर देना. तो ही मे फर्निश व्हाट, ही मे फर्निश टू ए और एपिलेट अथॉरिटी डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन फर्निश कर सकता है, क्या कर सकता है, ही मे फर्निश अ डिक्लेरेशन टू अप्लाई व्हाट, टू अप्लाई द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस, फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस ऑन दिस केस. ठीक है. नाउ ऑन द रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे ही डिक्लेरेशन रिसीव होता है, इफ़ द डिक्लेरेशन इज रिसीव्ड बाय एपिलेट अथॉरिटी, इफ डिक्लेरेशन इज रिसीव्ड बाय द एपिलेट अथॉरिटी, ही शैल, इट इज शैल, ओके, ही शैल कॉल फॉर रिपोर्ट फ्रॉम एओ, he shall call the report from AO, overall report call करेगा, he shall call report from AO से report मंगवाएंगे, and he will check about the correctness of claim. Why he will call the report, he will call report to check what, to check the correctness of claim, to check what, to check correctness of claim, claim की correctness के लिए he will call the reports. ठीक है. अब यहाँ पे क्या बोलता है एसएससी बोलता है डिक्लेरेशन में, अगर आप ऐसा कहते हैं, इफ़ यू एक्सेप्ट, अगर कौन एक्सेप्ट करता है, एपिलेट अथॉरिटी और एओ जिसको भी डिक्लेरेशन दिया है, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं दैट दे विल अप्लाई द फाइनल डिसीजन ऑफ दिस केस टू दिस केस, देन एसएससी विल नॉट रेज क्वेश्चन ऑफ लॉ इन एनी अपील. तो ये वाला जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये वाला क्वेश्चन ऑफ लॉ एसएससी विल नॉट raise in any appeal, किसी भी अपील में ऐसा नहीं करेगा, किसी भी अपील में ऐसा नहीं करेगा. इसका मतलब एक ही क्वेश्चन के लिए बार बार रिपीटेड अपील क्यों करना, तो ही इज सेइंग कि ही विल नॉट रेज इट इन एनी अपील. ठीक है, ओके. नाउ अब क्या होगा, आगे क्या होगा, either AO or appellate authority will admit or reject. Now this AO और appellate authority ये क्या करेंगे, either accept कर लेंगे डिक्लेरेशन, they will either accept the declaration or they will reject the declaration, they will accept or they will reject this declaration. If they accept, when they will accept, that when they are satisfied कि हाँ क्वेश्चन ऑफ लॉ बिल्कुल आइडेंटिकल है, if they find that question of law is identical, if they find the question of law is identical तो वो accept करेंगे, if they find it's not identical तो they will not accept, they will reject the case. यहाँ तक बात समझ में आई? यस मैम, यहाँ तक बातें तो समझ में आ गई हैं. अब यहाँ पे सुनो, मैंने यहाँ पे भी 158 में बोला कि व्हेन एसएससी क्लेम्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर एन असेसमेंट ईयर दैट इज pending before AO or appellate authority, that is CIT of appeal or ITET, and for another assessment year same question of law is pending before High Court or Supreme Court, then the SSC may furnish declaration to AO or appellate authority that he will not raise
this question of law in any appeal if appellate authority or AO accepts that they will apply the final decision of this case to this case. If appellate authority of AO is satisfied that yes, this is identical question of law, they may accept this thing, the declaration, and if they are not satisfied, they will reject it. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस मैम, यहाँ तक बातें समझ में आ गई. नाउ आगे आते हैं. Now AO or appellate authority will dispose the case without awaiting for the final decision of question of law in other case. अब क्या होगा, जैसे ही एक्सेप्ट किया, जैसे ही किया इन्होंने एक्सेप्ट किया, आफ्टर एक्सेप्टेंस जो अभी एओ या फिर एपिलेट अथॉरिटी के सामने द केस दैट वाज पेंडिंग बिफोर एओ और एपिलेट अथॉरिटी, दे विल डिस्पोज दैट केस विदाउट वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन. अभी तो केस क्या हो जाएगा, अभी द case will be disposed of. The case that was pending before AO or appellate authority, that will be disposed, उसे dispose कर दिया जाएगा without awaiting for final decision. अभी फाइनल डिसीजन का वेट किए बिना इसे क्या कर दिया जाएगा, फाइनल डिसीजन का वेट नहीं किया जाएगा और इसे क्या कर दिया जाएगा, डिस्पोज कर दिया जाएगा. ठीक है. एंड SSC विल नॉट रेज क्वेश्चन ऑफ लॉ इन एनी अपील. अब जब भी फाइनल डिसीजन आएगा, जब भी whenever this final decision will come, जब भी फाइनल डिसीजन आएगा सामने, then this final decision will be applied. ये फाइनल डिसीजन अप्लाई कर दिया जाएगा where to the relevant case. relevant case जो था, मतलब ये वाला जो केस था, इस पे relevant केस पे, ये relevant केस पे फाइनल डिसीजन को अप्लाई कर दिया जाएगा. इफ़ दिस डिसीजन, अगर जो फाइनल डिसीजन है रेलिवेंट केस को जिस तरह से डिस्पोज किया था सेम था, कोई चेंजेस नहीं होंगे, अदरवाइज चेंजेस कर दिए जाएंगे. आया. दिस इज 158A. दिस इज व्हाट, दिस इज 158A वेयर क्वेश्चन ऑफ, यहाँ पे कौन खुद SSC क्लेम कर रहा है. SSC बोल रहा है मैं कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी केस कहाँ पेंडिंग है, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो उसी का फाइनल डिसीजन यहाँ एप्लीकेबल कर देना. तो क्या होगा, हर साल क्वेश्चन ऑफ लॉ आ रहा है, सेम डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो कितनी बार अपील करेंगे. तो SSC बोल रहा है, अवॉइडेंस करना चाहता है वो रिपीटेटेड अपील का, तो रिपीटेटेड अपील के अवॉइडेंस के लिए यहाँ पे 158A SSC के लिए आ जाता है. दिस रिपीटेटेड अपील बाय SSC अब अपील नहीं करेगा, तो SSC के पॉइंट से यहाँ पे ये बात कही गई है. आया. यस मैम. मे आई टेक एन एग्जाम्पल फॉर दिस. यस मैम. चलो, तो लेट अस टेक एनालिसिस. अब हम अच्छे से एनालिसिस करते हैं. किसका एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस 158A का. वी आर एनालाइजिंग 158A. okay, now there will be two case. one is other case. other case means जो already pending है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कहीं पे पेंडिंग है, तो उसे हम बोलेंगे अदर केस. एंड जो AO आईटेट के पास है उसे हम बोलेंगे रेलिवेंट केस. रेलिवेंट केस मीन्स अभी जो AO के पास है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि इसके लिए हम आगे नहीं जाएंगे, आप ये डिक्लेरेशन एक्सेप्ट कर लो, सो दैट इज़ रेलिवेंट केस. एंड अनदर इज़ अदर केस जो ऑलरेडी किसी साल का SSC का पेंडिंग है टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. राइट. ठीक है. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. असेसमेंट ईयर, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं अदर केस में, असेसमेंट ईयर 2012-13. सपोज असेसमेंट ईयर 2012 एंड 13 का जो केस है, असेसमेंट ईयर 12-13 का, असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, मेड ऑर्डर ऑफ असेसमेंट एंड मेड एडिशन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ Z. AO ने क्या किया, यहाँ पे AO ने कुछ ऑर्डर डिसाइड किया था, कुछ भी मतलब एक लेट्स से कुछ चीज़ थी, क्वेश्चन ऑफ लॉ था, तो ऑर्डर ऑफ असेसमेंट हो गया एंड एडिशन कर दिया है, एडिशन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ. कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ का क्या हो गया है, एडिशन हो गया है. ठीक है. दे हैव मेड सर्टेन एडिशन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ.
एओ ने किया, एओ से गए कहाँ पे, सीआईटी ऑफ अपील के पास, फिर सीआईटी ऑफ अपील से आईटेट में केस गया, आईटेट से कहाँ गया, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। नाउ द केस ऑफ एसएससी, इस एसएससी का जो केस है, नाउ द केस ऑफ एसएससी, केस ऑफ एसएससी पेंडिंग इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे पेंडिंग है हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्वेश्चन ऑफ लॉ जो क्या है, उन्होंने जो एडिशन किया, लेट से जेड नाम का कुछ एडिशन किया, तो इस जेड के ऊपर क्या है, अभी केस पेंडिंग है। आया, यहाँ से मैं अभी रेलिवेंट केस हटा रही हूँ, ठीक है, ओके मैम। तो ये पिछले साल का भी किसी ईयर का, असेसमेंट ईयर का अभी भी केस हमारा पेंडिंग चल रहा है। यहाँ तक बात आ गई समझ में। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेलिवेंट केस, अब हम आ जाते हैं किस पे, रेलिवेंट केस पे। टॉकिंग अबाउट रेलिवेंट केस, नाउ अगेन फिर असेसमेंट ईयर 2013-14, इन असेसमेंट ईयर 2013-14 एओ ने फिर से क्या किया, एओ ने फिर से वही एडिशन किया। अलग अलग क्या हुआ, इस साल जो ओपिनियन एओ ने लिया था वो असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए भी ले लिया, ठीक है, असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए भी क्या कर दिया, ले लिया। अब फिर से क्या हुआ, एओ है, एओ से आप फिर से जाएंगे सीआईटी ऑफ अपील में, सीआईटी ऑफ अपील से यू विल गो टू आईटेट, आईटेट से क्या है, आगे जाना है। तो नाउ हियर व्हाट, केस पेंडिंग बिफोर आईटेट ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। अभी सपोज करो केस यहाँ पे क्या है, आईटेट पे ही पेंडिंग चल गया, यहाँ पे केस क्या है, यहीं पे क्या हो गया, पेंडिंग हो गया डिसीजन के लिए। फिर हम आते हैं 2014-15 पे, फिर 2014-15 में सेम हुआ, एडिशन हुआ, एओ ने किया, एओ से हम सीआईटी ऑफ अपील के पास गए। अब सीआईटी ऑफ अपील के पास अभी केस यहीं पे पेंडिंग हो गया हमारा, ठीक है। फिर हम आते हैं 15-16 पे भी ऐसा हुआ, 15-16 पे क्या हुआ, अभी एओ के पास ही केस है, अभी केस कहाँ है, एओ के पास ही है, अभी केस कहाँ है, केस इज विथ एओ, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। नाउ हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ 13-14 की, इफ़ आई टॉक अबाउट 13-14, इफ़ आई टॉक अबाउट 13-14, now the case is pending to appellate tribunal, that is applicate authority। एप्लीकेट अथॉरिटी के पास केस अभी पेंडिंग है, तो यहाँ एप्लीकेट अथॉरिटी को एसएससी डिक्लेरेशन दे सकता है। हेयर द डिक्लेरेशन कैन बी गिवन बाय एसएससी कि अगर यहाँ जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा, दिस फाइनल ऑर्डर विल बी अप्लाइड ओवर हेयर, तो इस क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए ही विल नॉट गो टू व्हाट, ही विल नॉट गो टू अपील के लिए नहीं जाएंगे। सेम क्वेश्चन ऑफ लॉ के लिए फिर यहाँ भी अपील के लिए नहीं जाएंगे, इस साल में भी नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, सीधे ये जो फाइनल डिसीजन है आगे आने वाले हर टाइम में क्या करना है, यहाँ का फाइनल डिसीजन आपको यहाँ एप्लीकेबल करना है। हेयर ही कैन ऑल्सो डू दिस, चलो उसने इस साल में नहीं किया, यहाँ पे भी कर सकता है। अभी सीआईटी ऑफ अपील के सामने, दिस इज ऑल्सो एपिलेट अथॉरिटी। एओ की यहाँ पे भी पेंडिंग है, तो एओ के यहाँ पे पेंडिंग होने पे भी वो क्या दे सकता है, ही कैन गिव अ डिक्लेरेशन। हेयर ऑल्सो ही कैन गिव व्हाट, ही कैन गिव डिक्लेरेशन। In the prescribed declaration it shall be mentioned that if, यहाँ पे अब जो वो डिक्लेरेशन देगा तो उसे मेंशन करना होगा, क्या मेंशन करना होगा, इफ आईटेट इन द ईयर 13-14, आईटेट अगर असेसमेंट ईयर 13-14 में, एंड सीआईटी इन द असेसमेंट ईयर, सीआईटी इन असेसमेंट ईयर 14-15 एंड एओ फॉर द असेसमेंट ईयर 15-16, if they agree, अगर ITET, CIT and AO if they agree to apply the final decision of High Court, if appeal is pending to High Court, and if हाई कोर्ट का क्या बोल रहा है वो, कि यहाँ पे वो लिखेगा डिक्लेरेशन में, अगर ITET, CIT एंड AO ये एग्री करते हैं दैट दे विल अप्लाई द फाइनल डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, if no appeal is further made to Supreme Court, if no appeal to Supreme Court is made, और फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अदर केस, इस अदर केस में जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे रहा है फॉर 12-13,
अगर वो अप्लाई करेंगे देन एसएससी विल नॉट फाइल अपील, देन एसएससी विल नॉट फाइल अपील इन रेलिवेंट केसेस। ये जितने भी रेलिवेंट केसेस हैं इनकी कोई अपील नहीं करेगा अगेंस्ट देयर ऑर्डर। उनका जो भी ऑर्डर आएगा फिर उसमें वो क्या नहीं करेगा, आगे अपील नहीं करेगा। अभी जो आपको ऑर्डर देना है दे दो, लेकिन जब यहाँ फाइनल ऑर्डर आएगा आपको वो एप्लीकेबल करना होगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Yes, ma'am. So ITET, CIT, AO will disallow the deduction on question of law without waiting for decision. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी ये लोग क्या करेंगे, यहाँ अभी तो डिडक्शन क्या कर देंगे, डिडक्शन वो डिसअलाउ कर देंगे, डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे, डिसअलाउ कर दिया। अभी जो केसेस है यहाँ तो डिडक्शन डिसअलाउ कर देंगे विदाउट वेटिंग फॉर द फाइनल ऑर्डर, विदाउट वेटिंग फॉर फाइनल ऑर्डर दे विल डिसअलाउ द डिडक्शन। अभी लेकिन क्या होगा, हमारा एसएससी क्लेम नहीं कर, अपील नहीं करेगा, ही विल नॉट अपील। अभी डिडक्शन नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, एडिशन वगैरह जो हुआ था यहाँ डिडक्शन नहीं मिला, बट एसएससी विल नॉट गो फॉर द अपील। तो जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा, तो जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा, लेट से फाइनल ऑर्डर आया अगेंस्ट एसएससी, अब फाइनल ऑर्डर अगेंस्ट एसएससी आया और डिडक्शन एक्चुअल में नहीं देना चाहिए था, तो अगर अगेंस्ट एसएससी है तो यहाँ पे रेलिवेंट केसेस में नो एक्शन इज रिक्वायर्ड। अगेंस्ट एसएससी है तो नो एक्शन रिक्वायर्ड इन रेलिवेंट केसेस। however if अगर इन द फेवर आता है, इफ इन फेवर ऑफ एसएससी, तो यहाँ पे आईटेट असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए, देन सीआईटी फॉर 14-15 एंड देन एओ फॉर 15-16 मॉडिफाई करेंगे। दे विल व्हाट, CIT of appeal and then AO, they will what, modify their order, modify करके उसे allowance देंगे। Are you getting the point? This is 158A. I hope clear हो गया होगा, नहीं हुआ तो you have चॉइस, आप कमेंट में पूछ सकते हो। आप स्टडी मेड इजी जो चैनल है, मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ, इट इज़ study_made easy। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, ओके चलें आगे। यस मैम, बिल्कुल। कमिंग टू 158AA, coming to section 158AA, and now what is section 158AA? Now section 158AA क्या कहता है? This section 158AA, in appeal by revenue, here appeal is done by revenue। अब revenue अपील कर रहा है। पहले अपील कौन करता था? पहले अपील करता था कौन? पहले अपील करता था एसएससी, बिकॉज एसएससी के अगेंस्ट में डिसीजन जा रहे थे तो अपील करने वाला एसएससी था। नाउ रेवेन्यू इज अपीलिंग, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसके फेवर में डिसीजन होता है? एसएससी के फेवर में होता है, इसलिए अपील करने रेवेन्यू जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं अपील कौन? इन अपील बाय रेवेन्यू ऑन एन आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट इज पेंडिंग बिफोर सुप्रीम कोर्ट। नाउ व्हाट, यहाँ पे लिखना है इन अपील बाय revenue, in appeal by revenue where an identical, in appeal by revenue where an identical question of law pending before Supreme Court, where the identical question of law is pending before Supreme Court. Now here also this section overrides the act. This section also overrides the act, that means notwithstanding anything contained in this act. This also override act. That means notwithstanding anything contained in this act. Where the commissioner is of the opinion, here commissioner is of opinion, commissioner का क्या opinion है? Where the commissioner, here this is commissioner, he is of opinion that question of law that arising in any case of an SSC,
that this question of law that arise in any case question of law arising in एनी असेसमेंट ईयर, किसी भी एनी असेसमेंट ईयर का क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एनी असेसमेंट ईयर, क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ एनी असेसमेंट ईयर ऑफ एसएससी, this question of law is identical, this is what it is, identical to question of law in his case, question of law in his case of अनादर असेसमेंट ईयर। इसी एसएससी का, एसएससी इज सेम, इसी एसएससी का जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है फॉर अनादर असेसमेंट ईयर, दूसरे असेसमेंट ईयर का सेम है, एंड दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज पेंडिंग, दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ इज व्हाट, दिस इज पेंडिंग बिफोर Supreme Court under section 261. It is already pending to the Supreme Court under 261 against the order of High Court. Against what? Against the order of High Court. High Court का कुछ ऑर्डर आया था, एसएससी के फेवर में गया था, एसएससी के फेवर में जाने के कारण अब वो सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। Now what commissioner will do here, यहाँ कमिश्नर क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिपीटेटिव अपील, in order to avoid repetitive appeal, instead of directing AO, instead of directing AO to appeal to ITAT, instead of directing, ऐसा नहीं करेंगे, he will direct, he will what, he will direct, क्या direct करेंगे, he will direct to make, he will direct क्या करेंगे, direct करेंगे AO को क्या बोलेंगे कि अप्लाई क्या करो, मतलब एप्लीकेशन दो, to make an application to ITAT, to make an application to ITAT को एक एप्लीकेशन दो within 60 days, within 60 days, within 60 days of date of receipt, date of receipt of order, within 60 days of the date of receipt of order of CIT of appeal, within the 60 days of date of receipt of order of the CIT of the appeal, क्या करना है आपको, अब क्या करना है, एप्लीकेशन करके एपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या बोलना है, यू हैव टू से अपील इन क्वेश्चन ऑफ लॉ, अपील इन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन दिस रेलिवेंट केस, ये जो रेलिवेंट केस है यहाँ पे जो अभी ये जो रेलिवेंट केस है, अपील ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ लॉ विल बी फाइल्ड व्हेन डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अदर केस, मतलब ये जो पेंडिंग डिसीजन यहाँ पे है, डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अदर केस, इस केस में क्या है, जब यहाँ पे क्या होगा, इस केस में जो डिसीजन आएगा, यहाँ फाइनल डिसीजन आएगा, उसके बाद हम अपील करेंगे। तो वहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं अपील विल बी फाइल्ड, अपील ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन रेलिवेंट केस, रेलिवेंट केस मतलब जो अभी एट प्रेजेंट असेसमेंट ईयर का केस है, अपील इन क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ द रेलिवेंट केस टू बी फाइल्ड, ये भी फाइल होगा, टू बी फाइल्ड व्हेन डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ इन अदर केस बी फाइनल, इन अदर केस बी फाइनल, जब वहाँ पे फाइनल हो जाएगा तब, ठीक है। नाउ अब एप्लीकेशन कब होगी, एप्लीकेशन ये अगर ये हमारा जो कमिश्नर है, कमिश्नर एओ को बोल रहा है कि जाओ जाके एप्लीकेशन करके आओ आईटेट को, तो ये एप्लीकेशन सिर्फ तभी हो सकती है, दिस एप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस एप्लीकेशन possible
only when acceptance received from assessee, only when acceptance received from assessee, assessee बोलता है accept करता है, acceptance receive करता है कौन, it is received by assessee। क्या एक्सेप्टेंस रिसीव हो रहा है एसएससी से कि हाँ ठीक है, जो भी फाइनल ऑर्डर आएगा, अगर फाइनल ऑर्डर एसएससी के फेवर में चला गया, अगर फाइनल ऑर्डर किसके फेवर में गया, एसएससी के ही फेवर में गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई अपील नहीं होगी। लेकिन एसएससी के फेवर में नहीं जाता है फाइनल ऑर्डर, तो फिर हम आगे जाके क्या करेंगे, फिर आगे जाके क्लेम करेंगे टू आईटेट, फिर हम आगे जाके क्लेम करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर एसएससी के ही फेवर में गया तो फिर तो डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्योंकि ऑलरेडी एसएससी के फेवर में डिसीजन थे, तभी तो डिपार्टमेंट क्लेम कर रहा था। बट अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एसएससी के फेवर में, तो आगे फिर कुछ क्लेम करने का सेंस ही नहीं है। आगे फिर क्या है, कुछ भी अपील करने का सेंस है क्या? नो मैम, आगे तो फिर अपील करने का कोई सेंस ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, फिर अगर एसएससी के फेवर में गया तो फिर डिपार्टमेंट कुछ नहीं करेगा, नो इफेक्ट। हाउएवर इफ इट गोज अगेंस्ट एसएससी, तब जाके फिर वो एओ यहाँ पे क्या करेंगे, वो क्लेम करेंगे टू द आईटेट। सो दिस इज 158AA। ये क्या है हमारा 158AA। 158AA में क्या बोला है, 158AA में बोला है कि इफ़ द अपील इज डन बाय रेवेन्यू, अपील रेवेन्यू की है और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑलरेडी पेंडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, विद द परमिशन ऑफ एओ, एसएससी के पहले परमिशन लेंगे और फिर कमिश्नर डायरेक्ट करेंगे एओ को कि एप्लीकेशन दो टू द आईटेट को एप्लीकेशन दो कि हम अपील तब करेंगे जब क्या होगा, फाइनल डिसीजन कहाँ आएगा, फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आएगा। तो ये एप्लीकेशन करनी होगी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ सीआईटी। और अगर एप्लीकेशन गोज इन द फेवर ऑफ एसएससी तो कोई आगे अपील्स वगैरह नहीं होंगी, देयर विल बी नो इफेक्ट। हाउएवर इफ सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है, इफ इट गोज अगेंस्ट एसएससी, देन इन दैट केस आईटेट को एप्लीकेशन दी जाएगी। But this application is possible only if it is acceptance is given by assessee। सिर्फ तब होगा जब क्या है, assessee इस बात का देगा acceptance। जब क्या होगा, assessee इस चीज़ का हमें acceptance देगा, that means कमिश्नर को acceptance देगा। So are you ready for what? Are you ready for analysis? Yes ma'am, definitely we are ready। चलो, एनालिसिस ऑफ 158AA, एनालिसिस ऑफ 158AA। यहाँ पे भी है एक अदर केस, हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग एन अदर केस। अदर केस क्या है हमारा, अदर केस दैट इज प्रीवियस, जो हमारे पहले के कुछ असेसमेंट ईयर है, उन असेसमेंट ईयर का केस पेंडिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज़ व्हाट, पेंडिंग टू सुप्रीम कोर्ट। और फिर है हमारा क्या, कुछ रेलिवेंट केस जो करंट ईयर्स के आते जा रहे हैं, वो that is relevant case। So there are certain other case, there are certain relevant cases। Assessment year, again we will take the assessment year as same, assessment year 12-13। For the assessment year 12-13, AO ने क्या किया, AO has done assessment, AO has completed the assessment, made the order of assessment and made certain addition on question of law। He has made certain addition on question of law है, question of law के basis पे he has made certain addition। The case was gone to CIT of appeal, CIT of appeal के पास केस जाता है, CIT of appeal से आईटेट के पास, आईटेट से के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के केस के अगेंस्ट हमने क्या किया, हाई कोर्ट गिव द डिसीजन इन द फेवर ऑफ एसएससी एंड अलाउड द डिडक्शन और ही हैज़ हेल्ड रिसिप्ट इज़ नॉट टैक्सेबल, वॉट एवर द केस में बी। और हम इसीलिए डिपार्टमेंट जाता है कहाँ पे, डिपार्टमेंट गोज़ टू सुप्रीम कोर्ट। नाउ द case is pending to Supreme Court, case is pending here in Supreme Court। case कहाँ pending है, case is pending to the Supreme Court। this is what, this is other case। coming to relevant case,
suppose for the assessment year, here it was assessment year, just a minute, here it was assessment year 12-13. Now for assessment year 13-14, for assessment year 13-14 same addition कर दिया AO ने, देन फॉर 14-15 अगेन एडिशन हो गया, 15-16 में एडिशन हो रहा है, 16-17 में एडिशन हो रहा है, 17-18 में एडिशन हो रहा है. देयर आर एडिशंस दैट आर मेड बाय एओ. एओ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एओ तक की बात जा रही है, एओ एडिशन करते जा रहे हैं. ठीक है, सेम वे में जैसे 12-13 में उन्होंने जो क्वेश्चन ऑफ लॉ का ओपिनियन फॉलो किया, उस ओपिनियन को फॉलो करते हुए एडिशन होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन जब क्या हो रहा है, होता जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या होता है, CIT ऑफ अपील के पास जाते हैं. CIT ऑफ अपील, CIT ऑफ अपील के पास गए. अब CIT ऑफ अपील में क्या हुआ, सीधी बात है, उन्होंने क्या बोला, फॉलो हाई कोर्ट ऑर्डर. हाई कोर्ट की जजमेंट क्या है, SSC के फेवर में जा रहे हैं. जो जो जजमेंट SSC के फेवर में जा रहे हैं वो तो एडिशन करते जा रहे हैं यहाँ पे. अब वो क्या बोल रहे हैं, हम अभी क्या करते हैं, हाई कोर्ट ने जो कहा है हम वो फॉलो करते हैं. यहाँ CIT बोलता है वी विल फॉलो, CIT बोलता है फॉलो करेंगे हम. फॉलो क्या करते हैं, हाई कोर्ट का जजमेंट फॉलो करते हैं एंड डिडक्शन जो है, डिडक्शन अलाउ कर देते हैं या फिर नॉट टैक्स करते हैं, टैक्स नहीं करते. पर्टिकुलर चीज़ जो भी है उसको हम टैक्सेबल नहीं करते. ठीक है, तो असेसमेंट ईयर 13-14 से 17-18 असेसमेंट ईयर तक CIT इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग दिस, CIT इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग whom, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग AO कि आप ITET में फाइल करो, CIT इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग AO कि आप ITET में फाइलिंग करो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ CIT ऑफ अपील. अब कमिश्नर क्या है, कमिश्नर ये कमिश्नर ऑर्डर नहीं करता है, हमारा नॉर्मल CIT कमिश्नर ऑर्डर करता है कि CIT ऑफ अपील ने जो भी डिसीजन दिया है उस डिसीजन के अगेंस्ट आप कहाँ जाओ, ITET में जाओ. ही इज़ नॉट डायरेक्टिंग दैट, इंस्टेड ऑफ दैट वो डायरेक्ट करता है कि मेक एन एप्लीकेशन. वो क्या है, ये डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे AO को कि मेक एन एप्लीकेशन, जस्ट मेक एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन बनाओ और एप्लीकेशन किसको दो, गिव अ एप्लीकेशन टू ITET को इन प्रिस्क्राइब फॉर्म में आप एप्लीकेशन दो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर. ये जो ऑर्डर इन्होंने दिया है इससे 60 डेज के अंदर क्या कर दीजिए, ऑर्डर कौन सा, ये याद रखना एक सेकेंड. विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ CIT ऑफ अपील. CIT ऑफ अपील ने जिस दिन ऑर्डर किया है उस दिन, CIT ऑफ अपील जिस दिन ऑर्डर कर रहा है उस दिन से 60 डेज याद करना, उस दिन से 60 डेज काउंट करना. तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ CIT stating that appeal on question of law that arising in the relevant case may be filed. अब वो क्या बताएंगे, 60 डेज़ के अंदर, जितने यहाँ पे ऑर्डर आने से 60 डेज़ के अंदर अपील करते हैं ITET को. क्या अपील करते हैं कि हम अपील कब फाइल करेंगे, जब ऑर्डर आएगा किसका, सुप्रीम कोर्ट का. जब फाइनल ऑर्डर आएगा, व्हेन द फाइनल ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वी विल रिसीव, देन वी विल अप्लाई. तब हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन सिर्फ तब हो पाएगी जब हमारा SSC एक्सेप्ट करता है. ओनली इफ द SSC गिव्स द एक्सेप्टेंस दैट क्वेश्चन ऑफ लॉ इन रेलिवेंट केसेस आइडेंटिकल. वो बोल रहा है ठीक है चीज़ें सेम है, वो एक्सेप्ट करता है कि क्वेश्चन ऑफ लॉ एक्सेप्ट करता है कि आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ है. अगर SSC ने एक्सेप्टेंस दिया तब बात बनती है, अदरवाइज अगर SSC एक्सेप्ट नहीं करता तो नॉर्मल प्रोविजन अप्लाई करते हुए कमिश्नर क्या करवाएंगे, ITET में अपील फाइल करवा देंगे. CIT क्या करेगा, फिर ITET में अपील फाइल करवा देगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस मैम. अब क्या हुआ, आगे चल के इन द फेवर ऑफ SSC आ गया. फिर से इन द फेवर ऑफ SSC ऑर्डर आया. जब SSC के ऑर्डर में SSC के फेवर में ही ऑर्डर आ गया है तब तो कोई इफेक्ट नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट भी यही कर रहा था और इन्होंने भी क्या किया, हाई कोर्ट का डिसीजन मानते हुए डिडक्शन वगैरह दे चुके थे. तो यहाँ पे फेवर में गया तो नो इफेक्ट, देयर विल बी नो इफेक्ट. बट इफ इट गोज अगेंस्ट
इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट एसएससी तो फिर अपील फाइल की जाएगी एंड कीपिंग इन व्यू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फिर जाके क्या किया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा, देन डिसीजन विल बी मेड। सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन डिसीजन आया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के 60 डेज़ के अंदर अपील विल बी फाइल, विद इन 60 डेज़ द अपील विल बी फाइल एंड फिर क्या होगा, फिर मॉडिफिकेशन वगैरह करवाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से आगे डिसीजन लिए जाएंगे। सो दिस वॉज योर 158 AA। होप आपको क्लियर होगा। यू विल गेट द लिंक ऑफ द नोट दैट आई हैव मेड फॉर पर्टिकुलरली रिपीटेटिव असेसमेंट, अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेटिव असेसमेंट आपको मिल जाएगा। 2 पेज का ही है, 4 पेज का है एज सच, तो आपको वो पूरा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो स्टे पॉजिटिव, do cumulative revision, make summary notes, ठीक है। एंड दिस टाइम इफ़ एग्ज़ाम कंडक्ट होती है सो वी हैव टू क्लियर, अदरवाइज सेकेंड ग्रुप इतना अच्छा प्रिपेयर करना है कि जो लोग एक ग्रुप ट्राई कर रहे थे दे विल go for both group. See, the scenarios are not in favor that everyone can see and health comes priority. तो वी can't say कि क्या चीज़ें होनी है क्या नहीं होनी है, बट बी प्रिपेयर्ड बिकॉज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस पैंडमिक इज़ वैक्सीन एंड वैक्सीन आने में एटलीस्ट सितंबर लग जाएगा। दैट इज़ अकॉर्डिंग टू दी मोस्ट ट्रस्टेड अथॉरिटीज़, जो रिलायबल अथॉरिटीज़ है। आई डू फॉलो देम, आई डू रीड देयर न्यूज़, देयर जो भी कमेंट होते हैं वो सब मैं पढ़ती हूँ। तो अकॉर्डिंग टू देम सितंबर। So be prepared for worst also, but come out with some best in your worst. ठीक है, सबको बुरा लगता है, तुम्हें अभी मेरी स्टोरी नहीं पता है, अदरवाइज़ बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि बुरा लगता है जब अटेम्प्ट जाते हैं। आई नो, आई कैन फील दिस थिंग वेरी वेल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि व्हेन यू लूज़ योर अटेम्प्ट विदाउट योर फॉल्ट क्या होता है। बट ठीक है, प्रिपेयर फॉर द बेस्ट इन योर वर्स्ट, दैट आई कैन से, एंड प्रे कि अगर चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं तो एग्ज़ाम दे भी पाएंगे। ठीक है, चले। यस मैम। सो बेसिकली देयर इज़ वन मोर थिंग लेफ्ट, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं अबाउट द असेसमेंट। सो व्हाट आई एम प्लानिंग, उसका छोटा सा मैं क्या करूँगी, वीडियो बना दूँगी, ऑलमोस्ट हाफ आवर का और वीडियो का अपील एंड रिविज़न का 3rd पार्ट आई विल डू। बट उसमें क्या है कि ट्रांसफ़र, जैसे आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रोविजनल अटैचमेंट हो जाता है, सर्टेन ट्रांसफ़र कब वॉइड हो जाता है, ये वो सारी चीज़ें उससे रिलेटेड है। नोटिस कैसे सर्व होना चाहिए, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो आई एम नॉट मिक्सिंग इट हेयर। सो व्हाट यू कैन डू, आपको वॉच आउट करना है तो वो कर लेना, और वो डायरेक्ट में बहुत छोटे फॉर्म में, 30 मिनट्स भी ज़्यादा हो गया, बट छोटे फॉर्म में व्हाट आई विल डू थ्रू माई हैंड रिटन नोट्स, मैं बहुत रिविज़न फॉर्म में उसको करवा दूँगी, बिकॉज दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जहाँ इंपॉर्टेंट होगा दैट आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, सो स्टे ट्यून, फॉलो study_made easy, that's the Insta channel where you can personally connect me with ऑल योर डाउट्स। करियर काउंसलिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, व्हाट सो नॉट, मोटिवेशन चाहिए, जैसा भी आपको लगता है। सो शेयर माई वीडियोज़ एंड डू फॉलो देयर। थैंक यू।